Okay, writing map is totally different from that of your writing process diagram. Vocabulary is changed. And what for do we use map? So let's continue. Okay. Map usually you will be provided two maps. I mean, that one can be in the past and one in the present. So you need to understand about the time. For example, if there is a map in the past, so if it's in the past, we use past tense. If the map it's in present, so for example, let's take example map of Peshawar. Peshawar, uh, 10 years back, clear, for example, in 2015. So map is in the past, and then you can compare that with Peshawar and 2026, suppose. So now this map is in present. So tense we use in this case, that would be present tense. Or what we can have, like the map, it can be past and present combination. So one of the map is in the past, another one is in present. So we can use present tense and past tense. Another condition you can have map in present. For example, Peshawar and 2026. And then future, Peshawar and 2000, for example, 50 or 2000, yeah, 50. So now in this case, if you just focus, so it's about present and future combination. So you need to understand either map, it can be about past and present and present and future. So tenses are very important for you to understand about because these three tenses will be used here. In fact, these maps can be about either changes in cities. Suppose we have this one, changes in cities. Map showing urban development over time, including roads, buildings, and infrastructure, usually compares how towns expanded or facilities clear change over different periods. Or it can be changes in any of the resort. So maps depicting holiday or tourist areas with features like swimming, clear, hotels, beaches, and recreational facilities often shows development from natural areas to tourist destinations. And then you can have multiple buildings features like building before and building after that. So they can be different maps for you, and then you need to write on that. As I told you, you need to select the right tense for that. Suppose if we focus here, so past tense, historical map. If you just focus here, so in 1990, suppose 1990, it talks about the past. So in this case, we need to use past tense. The town was smaller, clear, and had fewer. So now can you see was and had? Both are in past. It's in past. Yes, sir. And if you just compare with the next one, present tenses. So make sure you understand about present tenses. If I say the shopping center is located, so it's in passive. Am I right? We have already studied about passive, present passive, present passive. Basic. In the town center and contains, can you see? And contains. Shopping center contains, again present. 25 shops. So both are in present. And if it comes about future tense or planned developments, so according to the plans, a new railway station will be built. Future, passive. Future, passive. Will build, will be built. Next, clear to the business. So now if you just focus all of them, so we have used different tenses. So make sure you understand different tenses, how tenses are used. So your selection of tenses really matter in this case. And then even you can use passive, both. You can use active and you can also use passive. So active in present, active in past, and active in future. And same is the case you should know about
passive in present, passive in past, and passive in future. So both needs to be understood by you that how I can use active tenses and passive one. Then you can have another one, and that is called multiple time periods. So in multiple time periods, how we can follow that? We can use different time periods. For example, past and present, clear, or present and future. If you just take example for this one, when comparing maps from different periods, combine tense appropriately. Make sure when you want to combine two tenses, clear. So make sure you understand which tense do we use and what time. The park was located. So now it's in past, right? So we have used past tense. In the center of the park, but now we want to change the tense, but it has been relocated. So it's now present perfect tense. So we have converted from past to present perfect tense. So this is how like you can use multiple tenses, Claire, and you should know how to differ them from one time to another time. After Okay, sir. this, again, we need four paragraphs to write it down. We will need four paragraphs, and the first paragraph that's all about introduction. Clear? Suppose you can be provided with such type of graph. For example, this is my question, the original question. The maps show. So maps plural. So with the verb we don't use s, no s. And the maps show the village of that's about Stockford in 1930 and 2010. So that's in the past. So we have paraphrase it, and how we can paraphrase. It's about two maps. There are two maps. So we change that illustrate. Can we say illustrates? Yes. No, sir. Why? Because maps are plural. Plural. Yeah, and we have said the transformation that occurred in Stockford village between, तो between ना इस्तेमाल करें क्योंकि यहाँ पे n है, अगर from होता तो फिर हम between लिखते हैं, so you can say n same and 2030 and 2010. So simply वही चीज हम क्या कर रहे हैं, we have paraphrase, ये तो already आपको पता है, ठीक है, you don't need. अब इसके बाद हमारे Yes, पास sir. जो है वो क्या है कि ओवरव्यू. अब यस्टरडे जब हम ओवरव्यू पढ़ रहे थे ना, फॉर दैट ऑफ यूर वो वी कॉल Process diagram. प्रोसेस. सो प्रोसेस डायग्राम में हमने ये पढ़ा कि भाई टोटल इसमें स्टेजेस कितने हैं और कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे ख़त्म हुआ, याद है ना आपको. Yes, sir. अब याद है. Yes, इसमें, sir. या गुड, अब इसमें जो है ना, when we talk about the overview paragraph for that of your maps. सो मैप्स में तो हम हमारे पास प्रोसेस तो नहीं है, स्टेजेस तो नहीं है यहाँ पे, तो मतलब हम ये देखेंगे. देखे पहले फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव वन मैप एंड दैट वन मैप, सपोज देयर इज अ मैप, ये मैप है, ठीक है, एंड देयर इज अनदर मैप. दो मैप्स है. एक मैप मतलब इट्स इन द पास्ट 2015, अब 2026 है. तो दो मैप मेरे पास आए. एक मैप में फॉर एग्जांपल इफ देयर आर फ्यू होम्स, 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे पूरा एक ब्लॉक बना हुआ है होम्स का, तो घर ज्यादा हुए. अब यहाँ पे हमारे पास हॉस्पिटल सपोज नहीं था, यहाँ पे सारा क्या था, लैंड था, फार्म था, लैंड फार्म था, ठीक है. ये कंप्लीट लैंड है. अब ये यहाँ पे उसी लैंड पे क्या बना, सपोज वी हैव अ हॉस्पिटल. तो चेंजेस आ रहे हैं ना हमारे पास. Yes, sir. पहले यहाँ पे मतलब एक छोटा सा रोड था, सड़क, मतलब देयर वाज अ स्मॉल रोड. अब ये कंप्लीटली मतलब ये रोड जो है हर तरफ फैल चुका है. हाँ, इस साइड भी रोड है, वहां पर भी रोड है, तो मतलब इसमें इफ यू जस्ट फॉलो दैट, सो वी कैन सी दैट इन बोथ ग्राफ देयर आर सम ऑफ द सिग्निफिकेंट चेंजेस. तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें ये करेंगे कि इसमें जो सिग्निफिकेंट सबसे ज्यादा मतलब चेंजेस हुए उसके बारे में हमने लिखना है कि भाई इसमें क्या चेंजेस आए. हम ये कह सकते हैं कि मतलब जो पुराने वाला उसमें था, तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब अब ये इसमें घर जो है ज़्यादा हुए. सो वी कैन टॉक Yes, अबाउट sir. द विलेज. फॉर एग्जांपल ये एक विलेज था पहले, अब ये पूरा एक टाउन बन चुका है, सिटी बन चुका है. सो वी कैन से द विलेज हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ टाउन with significant urban development, including, for example, new residential area.
एंड इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मतलब इसमें आपने सिर्फ ये कहना है कि क्या क्या ज़्यादा इसमें इंक्लूड हो चुका है। फॉर एग्जांपल, इंक्लूड इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? अब इसमें ये तो मैं नहीं लिख सकता ना, क्योंकि ओवरव्यू है कि इसमें हॉस्पिटल आया या सड़क आया, ये चीज़ें तो मैं नहीं लिख सकता। क्यों? क्यों नहीं लिख सकता? बिकॉज इट्स एन ओवरव्यू। एन ओवरव्यू में हम एग्जैक्ट चीज़ नहीं लिखते, हम ओवरऑल। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? सड़क भी है, हम्म, ब्रिज भी है, ठीक है, ये सारे मतलब चीजें क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। सो सिंपली वी कैन टॉक अबाउट दैट ओवरऑल द विलेज हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ टाउन विद सिग्निफिकेंट अर्बन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग न्यू रेजिडेंशियल एरिया, या जो भी उसमें हो। अब ये दूसरे वाले को देखें, इन जनरल ये ओवरव्यू ओवरऑल। यूनिवर्सिटी कैंपस हैज एक्सपैंडेड। अब एक यूनिवर्सिटी कैंपस था तो पहले छोटा था, अब ये बड़ा हो चुका है। सो कैन वी से लाइक एक्सपैंडेड कंसिडरेबली, expanded significantly with several new buildings। मतलब पहले उसमें कम बिल्डिंग्स थे, अब उसमें नई बिल्डिंग्स आ चुके हैं। while the central square has remained largely unchanged। अगर एक जगह पे, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसमें ना, अगर ओवरव्यू पैराग्राफ लिखना है तो इसमें मतलब बिगेस्ट, जो बिगेस्ट चेंजेस है उसके बारे में लिखे, जो बिल्कुल हमारे पास। और सेकंड पॉइंट वी कैन राइट अबाउट इफ देयर इज अनचेंज्ड। अगर एक चीज है वो चेंज, लाइक दैट रिमेन सेम, देयर इज नो चेंजेस एट ऑल, तो मतलब दो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं जैसे हमने यहां पे लिख दिया। वी हैव रिटन अबाउट दैट द यूनिवर्सिटी कैंपस हैज एक्सपेंडेड कंसिडरेबली, सेवरल बिल्डिंग्स एडेड विथ सेंट्रल स्क्वायर हैज रिमेन लार्जली अनचेंज। उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, तो दैट्स व्हाट वी कॉल आवर ओवरव्यू। तो ओवरव्यू तो काफ़ी इजी है, मतलब इसमें वो जो हमने मतलब पहले ग्राफ्स पढ़े थे वो तो काफ़ी मुश्किल था, ये तो काफ़ी इजी है हमारे पास। अच्छा जी। Yes, sir. अब यहां पे देखिए आप लोग के लिए ये जो, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कल हमने जो स्लाइड्स पढ़े थे ना वोकैबुलरी के लिए, जो transformed, clear, transported, converted, clear. And then we talked about even the stages, initially, consequently, clear, and finally all the vocabulary we studied there. अब यहाँ पे हमारे पास ये जो स्लाइड है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफ वी टॉक अबाउट एनी ऑफ द मैप, तो मैप में हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है ना। तो अगर आपके पास वोकैबुलरी वर्ड्स ना हो तो आप नहीं लिख सक पाएंगे, क्लियर। क्योंकि हम कह सकते हैं कि बिल्ड, हम अगर ये कहना चाहते हैं कि अच्छा यहाँ पे पहले बिल्डिंग नहीं था, अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो कंस्ट्रक्ट वर्ड और बिल्ड वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो अ न्यू, क्लियर। Yes, अब पहले मतलब लाइब्रेरी नहीं था, ठीक है, लाइब्रेरी। सो अब लाइब्रेरी है, सो अ न्यू लाइब्रेरी हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, लिख सकते हैं ना, yes, sir. क्लियर। अब अगर वही वहां पर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन के लिए ये वोकैबुलरी है, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर पहले वहां पे लाइब्रेरी था लेकिन लाइब्रेरी को अब वो रिमूव कर चुके हैं, तो हमारे पास रिमूवल के लिए भी कुछ ना कुछ वर्ड्स तो होने चाहिए ना। For example, Yes, sir. library has been demolished and replaced with, for example, parking। पहले वहां पे था तो वो डिमोलिश कर दिया, रिमूव कर दिया, और उससे उसकी जगह हमने क्या इस्तेमाल किया, क्या वहां पे यूज हुआ है? सो वी हैव यूज Parking. पार्किंग। अब अगर चेंजेस ना हो, इफ देयर इज नो चेंजेस, सो नो चेंजेस के लिए रिमेन अनचेंज लिख सकते हैं। अब अगर एक चीज फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास मतलब अब एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका हो, मतलब पहले इतना मॉडर्न नहीं था, अब वो मॉडर्नाइज हो चुका है, सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस या कन्वर्ट हो चुका है। सो दैट्स वोकैबुलरी यू नीड दैट। अच्छा, एक्सपेंशन के लिए भी हमारे पास वर्ड्स होने चाहिए। एक्सपेंशन के लिए यह है कि पहले मतलब एक जगह थी, क्लियर, वी हैड फॉर एग्जांपल स्मॉल क्लासरूम, बट उस क्लास को हमने एनलार्ज कर दिया, बड़ा कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। सो कैन वी यूज दैट? इंक्रीज कर दिया, एनहांस कर दिया, सो वी कैन यूज दैट वोकैबुलरी फॉर दैट। और अगर एक फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले पार्किंग का जो एरिया था दैट वाज बिग, बट नाउ वी हैव रिड्यूस दैट, वी हैव डिक्रीज दैट, क्लियर। तो हमारे पास ये सिक्स वोकैबुलरी जो है ये आपके काम आने वाले हैं, बिकॉज विदाउट दिस वोकैबुलरी यू वोंट राइट बेटर देन। सो दिस स्लाइड इज Okay, मोस्ट sir. इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है ना, ये आपके पास होंगे, ठीक है। आई विल शेयर इफ यू डोंट हैव, सो आई एम गोना शेयर विद यू। टेक पिक्चर आउट ऑफ इट प्लीज। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है? नाउ लेट्स टेक सम ऑफ द सम मोर पॉइंट्स। ये लोकेशन एंड डायरेक्शन, आपको मैप के लिए, मैप के बारे में जानने के लिए आपको लोकेशन एंड डायरेक्शन के बारे में जरूर मालूम होना चाहिए कि हाउ टू यूज देम। अब मेरी बात सुने। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मैप है एंड देयर इज अनदर मैप, दिस इज अनदर मैप। तो आपको लोकेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। दिस साइड ऑफ योर मैप, दिस इज वेस्ट,
दिस साइड इज ईस्ट एंड दिस साइड इज नॉर्थ एंड दिस साइड इज साउथ। तो मतलब आप ये लिख सकेंगे बिकॉज यू कैन रेफर टू देयर ऑफ लोकेशंस। ठीक है, अगर ये कॉर्नर है तो इस कॉर्नर को हम कहते हैं साउथ ईस्ट, इस कॉर्नर को हम कहते हैं साउथ वेस्ट, इस कॉर्नर को हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, इस कॉर्नर को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो ये जगह आपको मालूम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले यहां पर हमारे पास नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास हॉस्पिटल था। अब ये हॉस्पिटल इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया यहां पर इस ग्राफ में। तो ये हमारे पास ये कॉर्नर जो है साउथ ईस्ट है। सो नॉर्थ वेस्ट से ये कन्वर्ट होके यहां पे साउथ ईस्ट पे लेकर आए। तो आपके पास ये जो लोकेशंस है ये आपके काम आने वाले हैं बिकॉज यू शुड नो अबाउट देम। इफ यू डोंट नो, सो हाउ देन इट विल गिव यू टफ टाइम टू राइट ऑन इट। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हॉस्पिटल हैज क्लियर कन्वर्टेड और हॉस्पिटल हैज बिन रीलोकेटेड फ्रॉम। अब यहां पे मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? द हॉस्पिटल has been relocated, has been relocated पैसिव में मैंने इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, फ्रॉम, फ्रॉम फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास नॉर्थ वेस्ट, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू, वहां पे मैं लिख सकता हूं साउथ ईस्ट ईस्ट। कॉर्नर। तो लिख सकता हूं ना। अगर ये आपको नहीं आता है तो फिर देन यू कैन लाइक इट विल गिव यू टफ टाइम टू राइट इट। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड अबाउट दीज पॉइंट्स दैट हाउ टू यूज देम। क्लियर है? उसके अलावा आपके पास थोड़े लोकेशन प्रपोजिशंस होने चाहिए कि लोकेशन प्रपोजिशंस आने चाहिए, जैसे इन द सेंटर, इन द सेंटर, इन द मिडल, एट द एज, क्लियर, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट। तो ये वोकैबुलरी आपके पास होनी चाहिए दैट व्हाइल राइटिंग इट डाउन। समझ रहे? यस सर। ठीक है। अब आफ्टर दिस, for यस example, सर। we have got now two maps. One is in past and one is in present. So how many tenses we can use? One in past and one is in present. So past and present tenses we can use here in this case. अब ओरिजिनल मतलब ये जो पहला वाला हमारे पास है, तो पहले वाले में अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक दिस वन, तो 1990 में हमारे पास कुछ शॉप्स थे, तो अब ये काफी हाउसिंग एस्टेट बना, काफी बड़ा चेंज आया हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो एक शॉप था, मतलब ये शॉप नहीं, ये हाउसेज है। ठीक है, ये एक छोटा सा शॉप है, वो शॉप किस चीज में कन्वर्ट हुआ? मार्केट में, सुपर मार्केट सुपर में। मार्केट। यहाँ पे हमारे पास मतलब जो फार्म लैंड है वो बड़ा है, बिग है, वो श्रिंक होके कम हुआ है। ठीक है, श्रिंक हुआ है, रिड्यूस हुआ है। अब यहाँ पे स्कूल नहीं है, हमारे पास स्कूल आया। वहां पे रेलवे नहीं है, रेलवे आया। अब ये रोड जो है छोटा है, अब ये एक्सपेंडेड हुआ, एक्सपेंड कर दिया, रेलवे स्टेशन बना। तो कैन यू सी नाउ वी कैन सी बिग चेंजेस है। अब हमने कैसे मतलब लिख सकते हैं? वी कैन राइट द ओरिजिनल हाउसिंग अलोंग द मेन रोड हैज बिन सप्लीमेंटेड बाय लार्ज हाउसिंग एस्टेट। अब ये नॉर्थ ईस्ट नहीं है, नॉर्थ वेस्ट पे है ना, ये वेस्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट पे। तो ये ईस्ट नहीं होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। द स्मॉल क्लियर स्मॉल लोकल शॉप हैज बीन रिप्लेस्ड बाय लार्ज सुपरमार्केट। देख रहे? तो ये रिप्लेस हुआ सुपरमार्केट। अ रेलवे स्टेशन हैज बीन बिल्ट इन द साउथ वेस्ट, ये देख सकते हैं साउथ वेस्ट, ये नीचे है। क्लियर? तो साउथ वेस्ट, तो साउथ भी है, वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट दोनों पे मतलब ये कंस्ट्रक्ट हुआ है। सो वी कैन यूज फॉर बोथ साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। कैन यू हियर मी? यस सर। ओके। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन एक्सपेंडेड। कैन यू सी? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कम था, अब ये एक्सपेंड हुआ है। अब इसी चीज पे अगर हम लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? आ जाए ओवरव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है? इंट्रोडक्शन लिखना है। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। नाउ फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट इफ यू जस्ट फोकस, सो उसी चीज को मैंने मतलब क्या कर दिया, that maps illustrate the changes that have occurred in small town between this and present day. अब उसके बाद हम क्या लिखना चाहते हैं इसमें? ओवरव्यू। सिग्निफिकेंट अर्बन डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस विद टाउन एक्सपेंडिंग कंसिडरेबली। टाउन बड़ा हो चुका है। द मोस्ट, अच्छा, टाउन में अब मोस्ट नोटिसेबल मतलब जो हमारे पास चेंजेस है वो कौन से? कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेजिडेंशियल एरिया है, सुपरमार्केट एंड रेलवे स्टेशन है। समझ रहे?
Yes, sir. तो ये आप लोगों का मतलब जो इस पे लिखना तो बहुत आसान है, इस कंप्यूटर लाइन ग्राफ और बार और पाई चार्ट्स। इसके बाद हम व्हाट वी कैन राइट टू मेन बॉडी पैराग्राफ्स। मेन बॉडी पैराग्राफ एक पुराने वाले पे लिखेंगे, एक नए वाले पे, ठीक है। सो वी कैन राइट टू मेन बॉडी पैराग्राफ्स, one old and one new. For example, in 1990, the area was predominantly rural, with a small village consisting of only few houses clustered along the main road and that run north to south. अब अगर इसमें देखें तो कैन यू सी, नॉर्थ से साउथ तक मतलब एक रोड है ना, और हमारे पास कुछ घर है और कुछ भी नहीं है इसमें। Number one, to east and west of this road lay extensive farmland with only small shop serving the local community needs. तो शॉप बहुत छोटा हमारे पास यहाँ पे है। उसके बाद देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एरिया। इसके अलावा तो और हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब Yes, sir. दूसरे में देखिए, बाय द प्रेजेंट डे अब क्या है, द एरिया हैज अंडरगॉन सब्सटेंशियल डेवलपमेंट, मोस्ट नोटेबली अ लार्ज residential clear estate has been constructed on what was previously farmland on the west of the main road। अब देखिए, वेस्ट पे है ना, मेन रोड के वेस्ट साइड पे है ना। Yes, sir. देखिए ये वेस्ट है ना हमारे पास, देखिए Yes. ये हमारे पास वेस्ट है ना इस साइड पे, ये है ईस्ट है। तो ये रेजिडेंशियल एरिया वेस्ट साइड, वेस्ट वेस्ट ऑफ द रोड, ये मेन रोड है, तो मेन रोड के वेस्ट साइड पे ये बन चुका है। Yes, sir. तो इसीलिए मैंने कहा कि इस ईस्ट और वेस्ट इन चीजों की तरफ थोड़ा ध्यान दे। फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि while a supermarket has been replaced some of the farmland to the east। अच्छा, इसमें ये ईस्ट और वेस्ट थोड़ा गलत लिखे हुए, तो आप लोगों ने उसके साथ थोड़ा वो करना है, लेकिन यहाँ पे ईस्ट की तरफ है, देख सकते हैं। सुपरमार्केट ईस्ट की तरफ है क्या ना, कि वेस्ट की तरफ है। सुपरमार्केट भी वेस्ट की तरफ है, लेकिन वेस्ट कौन सा है, साउथ वेस्ट की तरफ है। ये देखे वहां पे वेस्ट लिखे तो, लेकिन वो गलत है, ये ईस्ट लिखा था, ये वेस्ट है, ठीक है, कॉर्नर है ऑलमोस्ट। तो अगर ये साउथ है Main और road ये में। वेस्ट है, तो हम इसे कह सकते हैं कि साउथ वेस्ट। तो वहां पे गलत लिखे, ये ये आपने सर ठीक इसमें करने, कंपास Sir, ठीक है। कौन होगा? sir, मेरे हेलो। ये सर इस टाइप ऑफ मतलब मैथ में कंपास गिवन नहीं होता। सॉरी। सर सर ये मैथ्स का मेरे दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दोबारा पूछे। सर मैं कह रहा हूँ कि जो नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट गिवन नहीं होता मैथ्स में। नहीं नहीं, अगर वहां पे नहीं, अगर ना भी हो तो आप खुद ही ड्रॉ कर सकते हो ना उससे, उसका तो इश्यू नहीं है। आप मतलब खुद भी समझ सकते हो कि कैसे लिखना है उस पे। सर इसमें मेरे ख्याल में ईस्ट वेस्ट का मसला नहीं था। सर ये कह रहा है वाइल सुपरमार्केट हैज रिप्लेस सम ऑफ द फार्मलैंड, तो फार्मलैंड को स्कूल ने रिप्लेस किया है, सुपरमार्केट ने नहीं। अच्छा, वाइल सुपरमार्केट हैज रिप्लेस, हाँ वहां पे मतलब स्कूल ने रिप्लेस किया, यस। वेट लेट मी चेक आउट, यस 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 यस, गुड। तो ये सुपरमार्केट की जगह मतलब ईस्ट पे अगर है, तो फिर वहां पे रिप्लेसमेंट आ चुका है ना हमारे पास। यस सर। गुड, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हमारे पास है। पहले मतलब ये फार्म लैंड था, दिस वॉज कंप्लीट फार्म लैंड। अब ये फार्म लैंड किस चीज में, इट हैज रिप्लेस्ड अ स्कूल। तो फार्म लैंड कम हुआ और ये स्कूल आ गया, गुड। और ये ईस्ट पे है। अच्छा, ये सिर्फ हम जी बिल्कुल वहां पे उसे हमने चेंज करने, गुड। अब इसमें नेक्स्ट, इफ यू जस्ट keep focusing on that, the next part, and we can talk about, additionally a railway station has been built in the southern part of the area। अब अगर हम इसमें देखें तो साउदर्न एरिया पे ये रेलवे जो है साउदर्न एरिया पे बिल्ट हुआ है ना, बिल्कुल सर। क्योंकि नीचे जो है साउदर्न पार्ट है, और उसमें पहले रेलवे हमारे पास नहीं था, तो नाउ वी कैन वी मे हैव दैट ऑफ योर द रेलवे ऑन द साउदर्न, ये साउथ पार्ट है। ये पूरी जगह यस को सर। सिर्फ साउथ का है, तो पूरी जगह को हम साउदर्न। यस सर। आफ्टर दिस व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट, दैट इज okay, then we can talk about that, okay, small shop from 1990 has been demolished, ठीक है, यस सर। small and demolished
to make way for these new devices, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? The small shop from 1990 has been demolished and replaced with, हम ऐसे लिख सकते हैं ना? सुपरमार्केट। With a यस सर। supermarket, yes. तो सिंपली वही आप लोग इसमें कर सकते हैं. It's quite easy, it's not that difficult, and there are some other maps that I will share with you people the whole file if we don't have. तो आप इसे अब ये देख भी Sir, सकते हैं. जी जी. sir, is it possible to repeat the overview, sir? नो तो वर्ब तो ऑलरेडी मैंने दे चुका हूं ना आपको. ये वर्ब्स है ना. सपोज एक जगह पे आपने बिल्ड कर दिया, आप दूसरी जगह कंस्ट्रक्ट कर दे, दूसरी जगह डेवलप कर दे, तीसरी जगह एस्टैब्लिश कर दे. ये वर्ब्स इसीलिए तो मैंने ज्यादा दे दिए ना. सो डोंट रिपीट अ No, वर्ड. sir. हम्म. जी जी. Sir, sir, my way, sir, that's possible. Jita sudah overview tidak ada lagi दोबारा बानी repeat कहीं, sir. Yes, 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 yes. هذا دي overview تو gore دي خاصانه ده gore منغو overview liku tik sho pakpala. Let's write it down. Was for example the overview منغو liku tik sho منغ ba start walu overall overall kama bacho us منغ padi ki overview liku no padi ke منغ dali kale shu kana che a village, a small village has been considerably or yes significantly clear converted into a into urban area, clear, or into a major town or major city. अब इसे अर्बन एरिया में हमने कन्वर्ट कर दिया. मेजर सिटी की जगह आप लोग अर्बन एरिया लिखते हैं, तो अर्बन एरिया इज इनटू अर्बन एरिया कर दिया मैंने. इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? सबसे बड़ा चेंज किस चीज में आया है? सर हाउसिंग एस्टेट बने। हाउसिंग में आया ना. एग्जैक्टली. सो हाउ यस शुड आई सर। राइट नाउ? Yes, sir. हाउ शुड आई नाउ? व्हाट कैन आई राइट? द The मोस्ट सिग्निफिकेंट yes, चेंज। excellent. The most significant changes can be seen in the infrastructure of Housing. housing estate. ठीक है जी. Yes, sir. ये तो हमने एक कर दिया. ये तो बिल्कुल सेम टू सेम आया. क्लियर. अब यस दूसरे सर। किस चीज में हमारे पास से आए? क्लियर. उस पर देखिए दानूर चिकम दी. अगर दूसरे इफ यू जस्ट फोकस क्लियर, तो उसमें तो मतलब इन लोगों ने और मजीद कंस्ट्रक्शन कर दिया. दो चीजों में काफी बड़ा चेंज आया. हाउसिंग एस्टेट एंड दूसरा क्या है? एंड सुपरमार्केट. समझ रहे? वन यस पॉइंट. सर। इन दोनों Yes, में sir. काफी ज्यादा. अ, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं while farm while farmland has been reduced and size, clear, and replaced with स्कूल। school. बस more than enough. चगट कम चेंजेस था Okay, सॉरी sir. आपकी ओके बस. Okay, sir. Thank you, sir. ټیک ده. نو دې کې نور څه دومره دغه نشته. دې کې تاسو دا بل فایل هم زه د لیکم او دې کې تاسو ما هغه ماډل انسر چې کوم لیکلی او هغه باندې تاسو کوي لګ پریکټیس په کول دي تاسو ته. نو په دې کې موږ سره کوم یو میپ بل پاتې دی؟ کوم یو پاتې دی اوس کرنټلی؟ जी सर. میپ پکې کوم یو پاتې دی؟ ملټیپل میپس پاتې دي. صحیح دی. अब سبا ان شاء الله ملټیپل وکړو. सर टेबल ټیک شو. टेबल ټیبل कर اند ملټیپل ټیک شو. دا دوه پاتې دوه ورځې موږ سبا د کلاس کې شته ښه. इंशाल्लाह सर. یا دوه کلاسز به موږ به میپ په ټیبل باندې ولو. په دې تاسو او منډه نه به ان شاء الله موږ بیا ټاسک 2 شروع کوو.
قدې کې تاسو ته بلک Okay, دا sir. اندازه وشي کنه ګورئ چې هر یو جو جتنے भी मैप्स है we write it down differently vocabulary different है तरीका कार different है am I right Yes, sir. نو دې کې تاسو دا ټول Yes, نوٹ sir. چې کوم دي کنه دای باندې تاسو په هر یو میپ لکه دا به تاسو نه کوئ چې if you think like okay we may have line bar mode it depends on your luck you never know what type of map will come in your exam okay so make sure you understand ये ना हो कि आप एक मैप पे मतलब सिर्फ टाइम मतलब या प्रैक्टिस करें और आप सीखे एंड व्हाट इफ यू गो एंड यू सेट इन योर एग्जाम यू इवन डोंट हैव दैट और आपके पास मतलब सिर्फ मैप आ जाए तो नो वन कैन से कि कौन सा मैप आपके एग्जाम में आ सकता है तो इसीलिए आपने जितनी भी मैप से वी गिव इट मोर टाइम टू डेवलप एंड लर्न इट एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑन इट Okay, sir. او نو زه ته یو میپ هم نه پرېږدم صحیح شو کنه دا څنګه چې مطلب ما ته یو میپ د ته زه وکم او به ته هم چې ځای بس وروره خپل کار کوئ سو آی نیور کلیئر څومره میپ چې دي بچي ټول د ته زه کوم ښه خو تاسو ته لږ پریکټس به دې باندې به کولی چې هغه څنګه طریقې سره موږ امپروف کولی شو Okay, sir. Okay, sir. سبا به ان شاء الله موږ دغه ویو ټیبل به ویو بل موږ ملټیپل والا ویو بس تاسو کې سبا ختم شي ان شاء الله ان شاء الله Okay, صح sir. اوکې د قربان خیال ساتئ الله حافظ Allah Hafiz. الله حافظ Okay, sir.